There are over 5,000 stocks that are listed on NSE and BSE, and every morning, each trader has this question in his mind. How do they select a perfect stock to trade every morning, or how do they get to know which stock is going to give them big impulsive moves which they can catch and generate good profits? In today's video, you will understand and learn the art of stock selection, and at the same time you will get a setup which can help you print thousands and lakhs of rupees every single morning if you utilize it perfectly well. So without wasting any time, let's start off with the video. So this is our stock screening strategy, the top-down analysis, which will help you trade like a bull. So just understand, after this strategy, you will be able to select stocks and you will be able to make positions on the long side. तो ये strategy उन सबके लिए है जो bulls हैं market में, जो हमेशा अपने stocks पे long position बनाते हैं when they are trading. So this is a long side setup. So let's start off with it. This is the funnel and this is the exact approach that you are going to follow. So जब भी आप अपने setup पे बैठते हो, maybe से 9:15 और 9:20, 9:30, आपको सबसे पहला काम क्या करना है? You have to watch Nifty. How is Nifty? Is Nifty strong? Is Nifty weak? क्या Nifty आज ऊपर जा सकता है, क्या नीचे जा सकता है? Because if Nifty is looking bullish, अगर Nifty positive है, that means you are going to achieve very very good targets from this setup. But अगर Nifty थोड़ा weak है, that means ऐसा नहीं है setup काम नहीं करेगा. The setup will still work, but आपके जो targets हैं, जो आपके take profits हैं, वो थोड़े छोटे हो जाएंगे. And now let's understand Nifty. Nifty is nothing but the interpretation of how the top 50 companies of India are performing. So इसमें कौन कौन सी कंपनीज आती है? Reliance, HDFC Bank, ICICI Bank, right? तो ये सारी कंपनीज मिलके डिसाइड करती है कि जो हमारा निफ्टी है वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. दिस इज द थिंग. बट हमें सिलेक्ट करने हैं स्टॉक्स, और इतने सारे स्टॉक्स हैं. हाउ डू यू सिलेक्ट दैट परफेक्ट स्टॉक? तो इसके लिए हम जाएंगे सेक्टोरल एनालिसिस पे, और हमारे पास बहुत सारे सेक्टर है. फॉर एग्जांपल वी हैव निफ्टी फार्मा, निफ्टी आईटी, निफ्टी मेटल्स, निफ्टी ऑटो, बहुत सारे सेक्टर्स हैं. और हम अब देखेंगे इंडिविजुअली ईच सेक्टर, हाउ आर दे परफॉर्मिंग, बिकॉज वी नो अबाउट सेक्टोरल रोटेशन. जो भी बड़े प्लेयर्स हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी स्मार्ट मनी है, जो भी FIIs हैं, DIIs हैं, ये अपना पैसा रोटेट करते रहते हैं मार्केट में. दिल टेक देयर मनी आउट फ्रॉम से वन सेक्टर. सपोज कि निफ्टी आईटी से पैसे निकाल के उन्होंने निफ्टी मेटल्स में डाल दिए. नाउ निफ्टी मेटल्स विल बी परफॉर्मिंग वेरी वेरी गुड इन दैट डे, राइट? सो दिस इज द थिंग. वी विल लुक एट दिस सेक्टर्स, हाउ आर दे परफॉर्मिंग. सो 10 साढ़े 10 बजे तक आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो पॉजिटिव में है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. एंड आई विल शो यू अ लिस्ट विच आई हैव क्यूरेटेड, जो मेरे को हेल्प करता है इस सेटअप को फॉलो करने में. सो ऑन द स्क्रीन यू कैन सी all the indices starting from Nifty 50, Bank Nifty, and all the way down till Nifty Consumer Durables. So this is the exact list, and I have all the indices listed here. And if you just scroll down a bit, and under each sector there are different stocks. For example, यहाँ पे मैंने banking stocks लगा लिए हैं, then IT stocks, metal stocks, auto stocks, pharma stocks. इस तरह से एक पूरी list curated है. This will help you stay structured, और आपको स्टॉक सिलेक्शन में बहुत दिक्कत नहीं आएगी. नाउ हाउ डू यू गेट दिस लिस्ट? सो यू विल हैव टू गो टू NSEindia.com, और यहाँ पे आप देखोगे there is this option of market depth. Click on market depth, go to indices. So if you just scroll down a bit, you can see Nifty IT, Nifty Metals, Nifty Media, Nifty Pharma. Every single sector is mentioned here. And if you just click on it, for example, I click on say Nifty IT, what I will see all the stocks, TechM, Wipro, Infosys, right? So a complete list is present here. Now you can add them to your trading view and the things will become very very simple for you. Now the first step which we discussed already is by 10:30 you should have an idea कि आपको कौन से सेक्टर को टारगेट करना है. फॉर एग्जाम्पल आज निफ्टी आईटी और निफ्टी मेटल्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं केवल उन्हीं 2 सेक्टर्स को टारगेट करूंगा और उसी सेक्टर्स के स्टॉक्स को पिक करूंगा. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड. नाउ एवरी सिंगल डे देयर विल बी अ डिफरेंट सेक्टर विच इज परफॉर्मिंग वेल, और यही आपकी स्ट्रेटेजी है. एवरी सिंगल डे, हर सुबह आप देखोगे कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसको सॉर्ट कर लोगे उसी परसेंटेज में. फॉर एग्जाम्पल ऑन ट्रेडिंग व्यू यू हैव दिस ऑप्शन ऑफ चेंज परसेंटेज. इफ यू क्लिक on it will be sorted by percentage. तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्टर सबसे टॉप पे है, जो सबसे पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है इस वक्त, कौन सा सेकंड पे आ रहा है, कौन सा थर्ड पे आ रहा है. एंड यू विल बी पिकिंग दोज 2-3 सेक्टर्स ओनली. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या थ्रेशोल्ड होना चाहिए, कौन कौन से सेक्टर आप पिक करने वाले हो. सो एनी सेक्टर विच इज अप बाय से 1%, 2% और 3%, अगर इस रेंज में कोई भी आपका पर्टिकुलर सेक्टर अप है, यू आर गोइंग टू पिक दैट सेक्टर. इट कैन बी 1 सेक्टर, इट कैन बी 2 सेक्टर, इट कैन बी 3 सेक्टर्स डिपेंडिंग ऑन दिस क्राइटेरिया. तो जो भी सेक्टर्स आपके 1 to 3% up है by 10 to 10:30, that will be your target sector. And using the same approach, आप अब इन सेक्टर्स में से स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो
जो बहुत ही अच्छा इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं, विच आर अगेन अप बाय 1%, 2% एंड 3%। एक बहुत ही बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है मार्केट में कि अगर कोई स्टॉक ऑलरेडी 2 या 3% अप है, ये और ऊपर नहीं जा सकता। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, और यही हमारे सेटअप का सबसे प्लस पॉइंट है। बिकॉज अगर किसी भी सेक्टर में कोई पॉजिटिव न्यूज़ है, अगर किसी स्टॉक में कोई पॉजिटिव न्यूज़ है, तो वही स्टॉक अगर 2% अप है तो वो 5% अप भी होगा उसी दिन। एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ स्टॉक्स विच आर अप 5%, 6%, 10% इन अ सिंगल डे, और वही स्टॉक्स हमारे टारगेट बनने वाले हैं। सो आफ्टर यू हैव सिलेक्टेड योर सेक्टर, यू विल सिलेक्ट परफेक्ट स्टॉक्स। और वो स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करोगे? विद इन दैट सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव सिलेक्टेड निफ्टी IT, तो निफ्टी IT में अब आप टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स देखो। फॉर एग्जाम्पल, say Infosys, it's up by 2.5%, then you look at TCS, it is up by 1%. तो ये दोनों stocks आप select कर लोगे because they are fulfilling the criteria of 1 to 3%, and this is how you will select stocks. And after the stock selection, अब आप wait करोगे कि जो भी आपको मैं अब setup बताने वाला हूँ उसके क्राइटेरियाज अगर मीट होते हैं, then you will take this trade. So इसमें थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो mentioned है, wait for the consolidation and then catch the expansion. सो जिनको भी टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा बहुत नॉलेज है, दिस इज हाउ मार्केट मूव्स। देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन, देयर विल बी एक्सपेंशन, देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन, देयर विल बी एक्सपेंशन। कभी भी मार्केट कंटिन्यूसली एक्सपैंड करती नहीं रहेगी। देयर विल बी फेजेस ऑफ कूल डाउन, जहाँ पे एक मूव अप के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा, जहाँ पे मार्केट थोड़ा रेस्ट करेगी, जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस वापस से अपना स्टॉक्स को बल्क अप करेंगे, एंड देन द मार्केट विल गिव अनदर एक्सप्लोसिव मूव। दिस इज हाउ द मार्केट मूव्स, and this is your funnel. Now the setup is day high break, और अभी तक जितने भी पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं पीछे, वो सब आपको याद रखने हैं। So let's understand few criterias of this day high break setup. First thing, you will select the stocks which shows you momentum. Second, the stock will consolidate. ऐसा नहीं होगा कि वो 2% अप है ऑलरेडी 10:30 बजे तक, 11 बजे तक, और उसके बाद वो फिर से 2% अप हो जाएगा। नहीं, द स्टॉक विल कंसोलिडेट, एंड दिस इज द टाइम व्हेन द स्मार्ट मनी विल मेक पोजीशंस। जब वो कंसोलिडेशन हो रहा होगा, उस वक्त आपके FIIs, DIIs, स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूट्स, दे विल बी बाइंग द क्वांटिटी ऑफ स्टॉक्स स्लोली एंड स्टेडीली विदाउट इवन मूविंग द मार्केट, और वहाँ पे प्राइस एक बहुत ही टाइट रेंज में मूव करता रहेगा। एंड वंस दैट कंसोलिडेशन इज ब्रीच्ड, जब वो ब्रेक करेगा, वहाँ से आपको एक बहुत अच्छा मूव मिलने वाला है। थर्ड थिंग इज एनालाइज द स्टॉक्स, गो फ्रॉम अ हायर टाइम फ्रेम टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, एंड दिस इज एग्जैक्टली यू शुड डू विच एवर ट्रेडिंग स्टाइल यू फॉलो। तो आपको हमेशा आपका एनालिसिस स्टार्ट करना है वीकली या डेली टाइम फ्रेम पे, एंड देन यू विल गो डाउन अ बिट। आप 4 आवर्स पे जाओ, आप 30 मिनट्स पे जाओ, आप 15 मिनट्स पे जाओ, आप 5 मिनट्स पे जाओ। दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू शुड एनालाइज योर स्टॉक्स। कभी भी आपको सीधा 5 मिनट्स पे ट्रेड करना शुरू नहीं करना है, बिकॉज यू शुड ऑलवेज लुक एट द बिगर पिक्चर कि बड़े टाइम फ्रेम्स पे क्या हो रहा है। बिकॉज द हायर टाइम फ्रेम डिमांड एंड सप्लाई जोन्स आर समथिंग विच वर्क वेरी वेरी वेल इन द मार्केट, right? So this is a very important point which you should always remember. Third thing, we will be using the VWAP indicator to track how the stock is going to move, and you will always see कि 12:30 to 2:30 के बीच में आपको बहुत बड़े बड़े मूव्स मिलेंगे मार्केट में, एंड इसको हम पकड़ेंगे, इसको कैच करेंगे। जो हमारे इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स हैं उसको हम ढूंढेंगे विद द हेल्प ऑफ VWAP। तो इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। नाउ विल वेट फॉर द स्टॉक टू एक्सपैंड, और जब वो अपना डे हाई क्लियर करेगा, जब वो अपना डे हाई ब्रेक करेगा, दिस इज द टाइम व्हेन वील बी एंटरिंग द स्टॉक्स। डू नॉट वरी, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो वी विल बी यूजिंग 2 एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड दिस कंप्लीट अप्रोच। नाउ मूविंग अहेड, let's understand what is VWAP. Now VWAP stands for volume weighted average price. Now I'm not going to touch the basics, but इतना जो भी टेक्निकल एनालिसिस ऑलरेडी कर रहे हैं, दे विल नो कि जब भी एक इंपल्सिव मूव आता है मार्केट में, इट शुड बी बैक्ड विद गुड वॉल्यूम। बिकॉज अगर कोई भी इंपल्सिव मूव है, फॉर एग्जांपल द प्राइस इज मूविंग फ्रॉम से पॉइंट A टू पॉइंट B, अगर वॉल्यूम्स अच्छे नहीं है, इट इज जस्ट लैक ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट, एंड ये एक्चुअल बाइंग का निशानी नहीं है। हमें देखना है कि क्या एक्चुअल बाइंग हो रही है मार्केट में, क्या इंस्टीट्यूशंस ने पोजीशन बनाई है, इज दिस मूव कमिंग आउट ऑफ एक्चुअल बाइंग और नॉट। सो ये आपको बता देगा VWAP. So VWAP is often used by institutional traders and the portfolio managers as a benchmark to evaluate the performance of their trades. It provides a more accurate representation of the average price of the asset compared to the simple average price, as it takes into account both the price and the volumes of the trade. And this is exactly what I just mentioned before. तो जब भी आपको मार्केट में एक मूव पकड़नी है, you will always see it is coming with good volume. Volume combined with price is something we are always looking for, because these are the essence of your price action, right? So VWAP को use कैसे करते हैं और इसको आप अपने charts पे लगा कैसे सकते हो? I'll just show you. So if you just go to tradingview.com, here you will have a sign where you can select the indicators. I'll just type it down, VWAP, and you'll select the first one. Now as soon as you select the first one, you will see something similar to this on the screen.
नाउ दिस इज स्लाइटली कंफ्यूजिंग राइट. सो यहाँ पे थोड़ा सेटिंग्स चेंज करते हैं और इसको बहुत क्लीन बनाते हैं. सो हियर यू विल हैव द ऑप्शन टू चेंज द सेटिंग्स. क्लिक ऑन दैट, रिमूव द अपर बैंड, रिमूव द लोअर बैंड, और अब आप अपने VWAP का थोड़ा सा कलर चेंज कर सकते हो. सो आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर टू रेड and I'm increasing the thickness to say 3 points, and here it is. Now you can clearly see how clean it is, and just make sure that you're using say 5 minutes or 15 minutes time frame when you apply your VWAP. VWAP आपका daily time frame पे काम नहीं करेगा, right? So ये 5 minutes chart and you can clearly see a red colored line, and this will really help you to make this setup a success. Now moving ahead, now so far you have different pieces of the puzzles, right? आपके पास सारे पीसेस आ चुके हैं. नाउ इट्स टाइम टू पुट देम इन प्लेस ताकि आप पूरा सेटअप अच्छे से समझ पाओ. सो यू नो डे हाई ब्रेक यूज़ हो रहा है, VWAP यूज़ हो रहा है, यू आर लुकिंग इनटू डिफरेंट सेक्टर्स, यू आर सिलेक्टिंग स्टॉक्स. पर अब ये सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ के आप अपना सेटअप कैसे बनाओगे एंड हाउ डू यू जनरेट गुड प्रॉफिट्स. नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स टू मेक थिंग्स क्रिस्टल क्लियर. सो द फर्स्ट एग्जांपल इज द कोल इंडिया ट्रेड ऑन 18th January. And just understand this very carefully and apply it every single morning, and just make sure कि आप इसको directly actual money से apply करने से पहले you are doing the paper trading. That means आप virtual money के साथ या फिर अपने कॉपी और पेन पे लिख के कि this is what I am following, और ये अगर मैं आज फॉलो करता तो मुझे इतना प्रॉफिट बनता, एंड यू विल बी माइंड ब्लोन बाय द रिजल्ट्स, राइट. नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द स्टेप्स. द स्टेप 1 वुड बी टू लुक एट निफ्टी. तो 10 साढ़े 10 बजे तक यू विल सी कि निफ्टी कैसा है. इज इट परफॉर्मिंग गुड, इज इट एवरेज, इज इट नॉट परफॉर्मिंग सो गुड. तो वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा. इफ इट इज परफॉर्मिंग गुड यू कैन चेस बिगर टारगेट्स. इफ इट इज नॉट परफॉर्मिंग गुड यू कैन चेस स्मॉलर टारगेट्स ऑन द लॉन्ग साइड. Second thing, look at the sectors. How are different sectors performing, right? And out of those sectors, select few stocks which are working out as per your setup. So that day, Coal India was doing something similar of what I wanted to see on the charts. Now let's move ahead. अब सबसे पहले आप क्या करोगे, आप जाओगे डेली टाइम फ्रेम पे. ऑलवेज गो फ्रॉम अ हाई टाइम फ्रेम टू अ लोअर टाइम फ्रेम. वहाँ पे मैंने देखा कि डेली टाइम फ्रेम पे एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट इट इज़ एट अ वेरी गुड डिमांड जोन. दैट मीन्स आप इसको सपोर्ट भी बोल सकते हो. काफ़ी सारे लोग इसको सपोर्ट बोलते हैं. वी कॉल इट अ डिमांड जोन, जहाँ पे एक्चुअल बाइंग आ सकती है. सो फ्रॉम द पास्ट वी सॉ दैट दिस इज़ अ वेरी गुड एरिया. ये हमारे इंटरेस्ट का एरिया जहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है, एंड दिस वॉज वॉट वी वर एक्सपेक्टिंग. एंड एग्जैक्टली ऑन 18th Jan वही हुआ. मार्केट वहाँ से बाउंस बैक किया, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी कि वो ऊपर जा रही है, राइट. एंड दिस वाज द फर्स्ट बायसनेस दैट वाज जनरेटेड ऑन अ डेली टाइम फ्रेम कि मार्केट यहाँ से लॉन्ग साइड पे जा सकती है, और हमारा सेटअप भी लॉन्ग साइड ट्रेड करने का है. सो इट इज़ अ बिग प्लस फॉर अस. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू 5 minutes टाइम फ्रेम, एंड यू कैन क्लियरली सी कि 5 minutes पे क्या हो रहा है. सबसे पहले व्हेन द मार्केट ओपन्स, तो इसने एक बहुत अच्छा इंपल्सिव मूव दिया ऑन द लॉन्ग साइड विच आई हैव मार्क्ड इन ग्रीन ओवल. यू कैन सी दैट देयर वाज अ गुड इंपल्सिव मूव, और वहाँ पे एक डे हाई बना. दिस वॉज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द डे. उसके बाद मार्केट स्टार्टेड टू कंसोलिडेट. तो आपने VWAP इंडिकेटर यूज़ किया, एंड यू कैन सी दैट द मार्केट वॉज कंसोलिडेटिंग. इट वॉज जस्ट मूविंग अप एंड डाउन इन अ टाइट रेंज. एंड एट द सेम टाइम आप देखो वॉल्यूम्स कैसे हैं. व्हेन द मार्केट इज कंसोलिडेटिंग द वॉल्यूम्स आर वेरी ड्राई. वो बिलो एवरेज हैं, वो बहुत ही कम हैं. एंड दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड सी कि जो आपके वॉल्यूम्स हैं वो इंपल्सिव मूव में अच्छे होने चाहिए, एंड कंसोलिडेशन में दे शुड बी वेरी वेरी लो. अगर कंसोलिडेशन लो वॉल्यूम के साथ हो रही है, इट इज़ अ बिग प्लस, राइट. सो आप देखोगे इंपल्सिव मूव वाज विद गुड वॉल्यूम, कंसोलिडेशन वाज विद अ लो वॉल्यूम, एंड देन जब आपके डे हाई के पास स्टॉक पहुंच रहा है, यू शुड बी वेरी वेरी अटेंटिव. एंड व्हाट यू सी कि यहाँ पे जैसे ही डे हाई ब्रेक हुआ, इट वाज ब्रीच्ड अराउंड 2 to 20. यहाँ पे आप देखोगे कि VWAP इट वॉज प्रीटी फ्लैटिश. जब आप कंसोलिडेशन में देखोगे इट वॉज प्रीटी फ्लैटिश, पर जब ये डे हाई ब्रेक करने लगा उस टाइम पे जो VWAP है इसके अंदर थोड़ा सा कर्व आने लगा, राइट. यू कैन सी द कर्व. और ये कर्व क्यों आ रहा है? बिकॉज एकदम से वॉल्यूम आने लगा है अब, एंड यू कैन सी दैट देयर इज अ राइज इन वॉल्यूम. पहले एकदम ड्राई वॉल्यूम था, एंड व्हेन इट वाज ट्राइंग टू ब्रेक आउट वहाँ पे वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, एंड इफ इट इज कमिंग विद गुड वॉल्यूम्स दैट इज अगेन अ ग्रीन सिग्नल. तो यहाँ पे जैसे ही डे हाई ब्रेक होता है, आई विल वेट फॉर द कैंडल क्लोजिंग. जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आपका डे हाई क्लियर हो रहा है, उस 5 minutes कैंडल की कैंडल क्लोजिंग का आप वेट करोगे, बिकॉज देयर आर सिनेरियोज कि आपको लग रहा है कि डे हाई क्लियर हो रहा है, बट जब वो 5 minutes कैंडल क्लोज होगी, इट विल क्लोज बिलो द डे हाई ब्रेक और आपका SL हिट होगा. सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपकी कैंडल क्लोजिंग हो रही है.
So at this point, I will wait for the candle closing and I'll make the position and I will catch the complete move. और आप ये move catch कैसे करोगे? So you will check out history. आप देखोगे कि कहाँ पे important resistance level है, कहाँ पे supply zones आ रहे हैं और वहाँ तक आप अपना target रखोगे. And from this trade, we were able to manage 1:3, which is a very very good trade, right? So these are few points that you should always keep in mind. I hope कि अभी setup थोड़ा सा clear हो रहा है. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, यू विल ऑलवेज वेट फॉर कंसोलिडेशन. अगर आपको से एक डे हाई ब्रेक मिल जाता है आफ्टर से 1 आवर, आपको 11:30 बजे के आसपास एक डे हाई ब्रेक मिल रहा है, आई विल नॉट एंटर. आई ऑलवेज वॉन्ट अ गुड लॉन्ग कंसोलिडेशन विद लो वॉल्यूम टू एंटर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो भी पॉइंट्स बता रहा हूँ, दिस इज जो चेक मार्क, ये आपके क्राइटेरियाज हैं, दिस शुड बी फुलफिल्ड. नाउ लेट्स लुक एट द डिफरेंट एग्जाम्पल. सो दिस इज द विप्रो ट्रेड ऑफ 30th जनवरी. So same strategy. First of all, look at Nifty कैसा perform कर रहा है. Can we take higher targets or should we take smaller targets? Second thing, look at the sector. So that day Nifty IT was performing really well and Wipro was one of the stocks that was under my radar. It was in my watch list using the same criteria of 1% to 3%. Now on 30th January, what we saw ऑन अ डेली टाइम फ्रेम. सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम देखना बहुत ज़रूरी है. डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे इट वॉज मूविंग इन एन अपवर्ड स्लोपिंग चैनल. तो बार बार वो सेम ट्रेंड लाइन पे आके इट वॉज जस्ट टैपिंग इनटू इट एंड इट वॉज मूविंग अप, इट वॉज टैपिंग इनटू इट, इट वॉज मूविंग अप. एंड एग्जैक्टली ऑन 30th जनवरी यू कैन सी कि वो एकदम ट्रेंड लाइन के पास था, जहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड दिस इज एग्जैक्टली वॉट हैपेंड. विप्रो यहाँ से एक बहुत अच्छा बाउंस बैक दिया उस दिन. एंड इफ वी मूव अहेड ऑन अ 5 minutes टाइम फ्रेम एंड व्हाट डू यू सी, द डे ओपन्स विद गुड impulsive moves with good volumes. After that we see some consolidation with low volumes. So you can clearly see there are low volumes consolidation. और अब आप देखते हो 12:30 बजे के आसपास वहाँ पे एक डे हाई ब्रेक करने की कोशिश करता है ये स्टॉक. बट क्या कैंडल क्लोजिंग है? नो, दिस इज अ फेक आउट. देयर इज नो कैंडल क्लोजिंग. अब जो लोग जल्दबाजी करेंगे और यहाँ पे एंटर कर जाएंगे, दे आर गोइंग टू लूज ट्रेड, उनका एसएल हिट होगा. बट जो थोड़ा पेशेंट रहेंगे, जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखेंगे, उनका एसएल हिट नहीं होगा. दे विल नॉट एंटर इट एट दिस पॉइंट. यहाँ पे आप देखो कंसोलिडेशन अच्छा है, इंपल्सिव मूव भी आ रहा है, पर कैंडल क्लोजिंग नहीं मिली है. सो दिस इज नॉट आवर एंट्री. अगेन वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ एंड देन वॉल्यूम्स आर अगेन ड्राई. अब मार्केट जा रहा है वापस से डे हाई ब्रेक करने एंड एट दिस पॉइंट यहाँ पे एकदम थोड़ा सा, इफ़ यू कैन सी क्लोजली, यहाँ पे एक डे हाई ब्रेक हुआ है, कैंडल क्लोजिंग हुआ है. एंड एट द सेम टाइम जो वीवैप है उसमें एक कर्व दिख रहा है. द वीवैप हैज स्टार्टेड टू गो अप. वहाँ पे एक इंक्लिनेशन दिख रहा है जो कि पहले फ्लैट था, विच क्लियरली शोज अस कि यहाँ पे वॉल्यूम आ रहे हैं. एंड यू कैन क्लियरली सी डाउन साइड कि यहाँ पे वॉल्यूम्स इंक्रीज होने लगे हैं जैसे जैसे हम ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहे हैं. एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम यहाँ पे 2 बजे के आसपास इफ़ यू वुड हैव मेड एन एंट्री, तो आप अपना एक अच्छा टारगेट कैच कर सकते थे यूजिंग द रेजिस्टेंस विच इज़ कमिंग फ्रॉम द हिस्ट्री. तो रेजिस्टेंस यहाँ पे बहुत अच्छा था, 404 to 400.5 रुपीज़ के आसपास, जहाँ पे हमने अपना टारगेट रखा. एंड हेयर ऑल्सो वी वर एबल टू मैनेज टू गेट 1:2.5 ट्रेड, विच इज़ वेरी वेरी गुड, राइट. सो दिस इज़ द एग्जैक्ट सेटअप विच यू शुड फॉलो. सारे रूल्स एकदम सिंपल हैं, बस पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल चाहिए आपको ट्रेडिंग में. यू विल बी एबल टू गेट गुड रिजल्ट्स एंड आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग. इफ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट कमेंट डाउन बिलो. माई टीम एंड आई विल आंसर ईच वन ऑफ इट. And just best of luck. Let me know how it works for you. Thank you so much guys for joining me in this video. Just make sure that you subscribe this channel because we'll bring more of such strategy for you every single week. And just make sure that you hit the thumbs up and share it with your friends. And let's just rock stock market and make good profits. Take care. Bye bye.